So the topic that we are going to study right now is mathematical methods. Okay, and in mathematical methods, we were studying about something known as triangular. So we also tried to solve some examples, correct? So we took this one as example. We solved triangular law. हमने create किया उसका triangular law. यहाँ पे solve किया, उसको create किया, etc. अच्छा ये notes हमने देखे थे क्या? देखो triangular law, obvious commutative law वगैरह. Yes or no? No, ऐसा कुछ sir. देखा था? Yes कि no? एक decide कर लो पहले. No, sir. Okay ठीक. सर आपने तो ना हम लोग को ड्रॉ करने बोला था। होमवर्क में दिया था? नहीं, लेक्चर No, के sir. टाइम में Only आपने बोला था और diagram is ग्रुप में done. That पोस्ट notes करने। are not, sir. हाँ. Law is not done. No issue. We'll begin with it. We देखो. will do. First of all, you have to understand what exactly commutative means. Commutative means even if you change the order of the addition or any process, the final answer will be same. It's like this. If I add 2 plus 3, I will get final answer as 3 plus 2. मतलब like even if you add 2 plus 3 and then if you add 3 plus 2, आपको same answer मिलने वाला है. तो ये जो है ना ये addition commutative लॉ को ओबे करता है. ऑर्डर चेंज करो आंसर सेम मिलेगा. Now you will think sir ये तो stupid thing है. We already know about this thing from school. Then why we have to study it over here? Because when I'm talking about triangular law of vector addition, you are actually talking about commutative law in case of vectors. वेक्टर के ऑलरेडी नखरे होते हैं, उनको डायरेक्शन चाहिए, उनको मैग्नीट्यूड चाहिए, एंड इतने नखरे होने के बाद भी वो किसी चीज को ओबे कर रहे हैं. दैट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस. समझ रहे हो? वाई कौन है? वाई ऑडियो म्यूट करो. वाई से किसका नाम है? देखो ऑडियो म्यूट करो. ओके सो माय पॉइंट ओवर हियर इज वेरी सिंपल कि वेक्टर्स कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करते हैं. नाउ आई एम गोइंग टू शो यू हाउ. मैं इसको प्रूव करने वाला. टू प्रूव दिस व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज दैट वी आर गोइंग टू टेक दिस टू वेक्टर्स. ओके एक p लेंगे, एक q लेंगे, एंड लेट्स बिगिन. So I have taken this particular thing over here, p vector q vector. पहले ना मुझे LHS प्रूव करना है. ओके लेट्स बिगिन विद द प्रोसेस. तो ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड यू आर गोइंग टू राइट p प्लस q. ऑन योर राइट हैंड साइड यू आर गोइंग टू राइट q प्लस p. अगर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सेम हुआ देन यू कैन से दैट सेम हुआ ना, p plus q equals to q plus p. How to begin with the process? Let's ignore right hand side for time being. Let's focus on left hand side only. So what I am going to do, first I am going to take this p vector as it is. अपना rule, अपना same process follow करना है. Nothing special is happening over here. p को लिखा, उसके बाद क्या करना है सर? आप बोलो सिर्फ. I have to take this q. And कैसे अटैच करना है सर? स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, सॉरी एंडिंग पॉइंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर को स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द सेकंड वेक्टर अटैच करना है. सो सिंपली अटैच कर दिया मैंने, नो बिग डील. ओके ये p और q थोड़ा नीचे लिखते हैं ताकि डिफिकल्टीज ना हो. नाउ द रिजल्टेंट इज रिमेनिंग साइड ऑफ द ट्राइंगल. तो रिमेनिंग साइड ऑफ द ट्राइंगल कैसे ड्रॉ करोगे? Starting point of the first vector to the ending point of the last vector, and this is how you have just found out your resultant vector. Let us call it as r1. जानबूझ के इसको दूसरा नाम दे रहा हूं. तो r1 आपका है p plus q. ओके यहां तक किसी को डाउट है? एनी डाउट? I have simply applied triangular law, guys. The same thing that I have been telling you for so long. Okay now let's try to solve it for right hand side. तो right hand side को solve करते हैं. तो कैसे solve करेंगे देखो. For right hand side I am going to take q first now. तो मैं q पहले लूंगा and then I will take p. So let's take q first. So I'm gonna take q over here. After that I'm going to take p. Now मेरा q vector will behave as a first vector and p vector will behave as a second vector. तो पहले वेक्टर के एंड को दूसरे वेक्टर का स्टार्ट वी हैव टू अटैच, isn't it? So I'm going to do the same thing.
I'm going to paste it over here, attached. Now what about next step? Now what you have to do is that you have to basically connect, okay, starting point of the first vector with the ending point of the last vector, like this. And this is how you got your resultant. Let's say this particular resultant is R2, which is Q plus P. Okay, abhi fun wali cheez dekho. Let's try to visualize or let's try to compare these two diagrams together. Okay, observe carefully. ये कुछ ऐसे जा रहा है और ये कुछ ऐसे जा रहा है. Can you see something interesting in these two vectors there? What can you see just by looking at the diagram? क्या फील हो रहा है? क्या लग रहा है देख के? पैरेलल है, बराबर, दे आर पैरेलल है, मतलब सेम डायरेक्शन फॉलो कर रहे. करेक्ट ज्योति का? करेक्ट स्वाति? तो इफ दीज आर पैरेलल तो दैट मींस दे आर क्रिएटिंग सेम डायरेक्शन. तो आई कैन सिंपली राइट R1 vector is parallel to R2 vector. So you can write it or you can conclude that this indicates same direction. Okay? अगर समझो आपको क्या करना है, I'll answer your question ना पूजा, जस्ट ये कंप्लीट करता हूँ. अगर समझो आपको इनका लेंथ कैलकुलेट करने को बोला, अभी मैंने तो कॉपी पेस्ट किया है, मेरे को गारंटी है कि मेरा लेंथ सेम आने वाला है. सो इफ आई मेजर दिस लेंथ ना एंड दिस लेंथ ना, वो सेम आएगा. बट आपको प्रॉपरली समझे कि इनका लेंथ एक्चुअली सेम है, इसलिए मैं ये करने वाला हूँ. ऑब्जर्व करो. इज देयर लेंथ सेम? है सेम? Yes. तो दैट मीन्स एक्चुअली लेंथ क्या पूरा का पूरा वेक्टर ही सेम हो गया, बट मैं थोड़ा डेप्थ में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. तो उनका लेंथ सेम है तो उनका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा. तो R1 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू R2 का मैग्नीट्यूड. यू कैन कॉल दे हैव सेम मैग्नीट्यूड. ध्यान से सुनो क्या पूछ रहा हूँ. टू वेक्टर्स having same magnitude and same direction are known as two vectors having same magnitude and same direction are known as, क्या बोलते हैं ऐसे वेक्टर्स? मैग्नीट्यूड भी सेम होता है उनका, इक्वल वेक्टर. इक्वल वेक्टर, यस करेक्ट, वेरी गुड गाइस. तो ये इक्वल वेक्टर होते हैं. तो R1 वेक्टर विल बी इक्वल्स टू R2. अरे भाई, जब आप उन दोनों के LHS इक्वल करते हो तो दोनों के RHS भी तो इक्वल हो सकते हैं. सो यू कैन डायरेक्टली राइट P plus Q equals to Q plus P. प्रूव हुआ कम्यूटेटिव लॉ. एकदम सिंपल सी चीज है, कोई डरने की जरूरत नहीं है. आपके अगर बेसिक्स क्लियर है ना तो सब हो जाएगा. सर Q के ऊपर एरो को क्या प्रोनाउंस करना है? देख, ये जो Q के ऊपर एरो है ना, यू कैन ईदर कॉल इट एज एंड पॉइंट ऑफ अ वेक्टर या फिर इसको हेड बोलते हैं. अभी तेरी मर्जी है, विच एवर यू वॉन्ट टू कॉल यू कैन कॉल इट. एक और वर्ड है, मेरे को अभी वो क्लिक नहीं हो रहा है, आप उसको बाद में सर्च भी कर सकते. बट माई पॉइंट ओवर हियर इज दैट आई प्रेफर कॉलिंग इट एंड, क्योंकि वो डेफिनेशंस के लिए इजी पड़ता है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं. वेलकम. तो चलो, आपको आई गेस कम्यूटेटिव लॉ समझा है. सर क्या इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा? इफ यू आस्क मी, नो. ये जस्ट आपको कंसेप्ट बाद में यूज करना पड़ेगा व्हाइल सॉल्विंग समथिंग और लाइक. बट इसके ऊपर थियरी क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है. सी, थियरी क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड बेस्ड ऑन ट्रायंगुलर लॉ एंड इट विल बी लाइक दिस. State triangular law and explain it with one example. So you have to state it properly and दो arrow निकालो, join करो, triangular law apply करो and that will be your example. तो इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस कम है. नीट में भी नहीं आता क्या? बट नीट के लिए इट्स लाइक, नीट में ना ये कंसेप्ट क्या यूज करेगी तू? P plus Q equals to Q plus P. जस्ट यू हैव टू नो दैट कि ये कम्यूटेटिव ऑब्जे करता है. आज तक तो मैंने नीट में देखा नहीं ये वाला कंसेप्ट के ऊपर कोई क्वेश्चन. I'll definitely tell you कि कौन सा कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है एंट्रांस के लिए, जेई के लिए, नीट के लिए, सीईटी, व्हाटएवर इट इज. I'll tell you that अगर मैं कम अक्रॉस हुआ तो. नाउ once you understand commutative law, let us talk about associative law. associative law एक और फालतू लॉ है जो क्या बोलता है पता है? अगर देखो ध्यान से सुनो, a plus b आपने पहले ब्रैकेट में ऐड किया, उसमें बाद में आपने c ऐड किया. ओके, दिस विल बी एग्जैक्टली इक्वल्स टू b plus c पहले सॉल्व किया एंड देन ब्रैकेट में a ऐड किया. ब्रैकेट कहाँ पे प्लेस करते हो एडिशन में, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता.
बट सर फिर भी इसको लॉ क्यों बनाया? बिकॉज दे वांट टू से दैट दिस इज फॉर वेक्टर, और वेक्टर में क्या है, वेक्टर के बहुत नखरे होते हैं। क्यों? क्योंकि वेक्टर में डायरेक्शन होता है। दैट इज वाई आपको ये पढ़ना है, क्योंकि स्पेशल है ना, स्पेशल वेक्टर फॉलो कर रहे हो। वाओ, सो दैट्स व्हाई यू हैव टू स्टडी इट, अदरवाइज फालतू चीज है यार। क्या? अरे मतलब क्या सर, क्या आप मतलब ऐसा बोल रहे हो आप इनडायरेक्टली? 2 + 5 + 3 विल बी इक्वल्स टू 2 + 5 + 3। हाँ यही बोल रहा हूँ मैं, बट ये मैंने मैग्नीट्यूड के टर्म्स में लिखा ना। ये लोग दे वांट इट इन टर्म्स ऑफ क्या, डायरेक्शन के साथ प्रूव करो। तो मैंने ना यहाँ पे 3 वेक्टर्स लिए। जरूरी नहीं कि ये ऐसे ही रहे, यू कैन गिव मी एनी डिफरेंट काइंड ऑफ अगली लुकिंग, ब्यूटीफुल लुकिंग, कोई ऐसे भी वेक्टर दे दो मेरे को, आपको डायग्राम में बना के दे सकता हूँ। बिकॉज आई एम गोइंग टू स्टिक टू द माई प्रोसीजर, दैट इज ट्राइंगुलर लॉ। मैं अपना प्रोसीजर नहीं छोड़ने वाला। ओके, तो प्रोसीजर सेम रहेगा, तो आप किसी भी वेक्टर्स के लिए प्रूव कर सकते हैं। बट हम लोग ये इजी वाले देखते हैं। इजी वाले इसीलिए क्योंकि इसको अंडरस्टैंड करना सिंपल है डियर। ओके, तो लेट्स ट्राई टू सी की वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। देखो पहला अपना LHS आएगा। तो इन देयर लेफ्ट हैंड साइड दे वांट अस टू राइट लाइक दिस, A + B + C। आपको बॉडमास रूल पता होगा ना, बॉडमास? Yes, sir. उसमें Yes, उसमें sir. फर्स्ट थिंग दैट वी डू इज वी Bracket फर्स्ट open. सॉल्व ब्रैकेट। हाँ मतलब ब्रैकेट बेसिकली सॉल्व करते हैं ना। तो ये ब्रैकेट पहले ओपन करेंगे हम लोग, दैट इज A + B को पहले सॉल्व करेंगे। सो दैट मीन्स सर मुझे A दिख रहा है, मुझे B दिख रहा है, एंड ये दोनों सेपरेट वेक्टर है। सो कैन आई यूज ट्रायंगुलर लॉ टू ऐड देम? यस। सो फर्स्ट यू नीड टू फाइंड आउट इन दोनों का एडिशन, दैट इज A + B। Let's begin guys. Simple triangular law का process using Bodmas rule. You first have to add A. उसके बाद you have to add B. See, I'm not going to tell you that same process. अभी आपके दिमाग में ही बैठ गया होगा ट्रायंगुलर लॉ कि कहाँ पे एरो होगा, कहाँ पे कैसे। और अभी रिजल्टेंट इसका बनाऊंगा ना मैं, तो ये रिजल्टेंट ऐसे बनेगा, समथिंग लाइक दैट। अभी ये रिजल्टेंट का नाम क्या लिखूंगा मैं? A + B। सी डियर, ये ना A + B सिर्फ A और B का रिजल्टेंट है, बट मुझे उसमें C भी घुसाना है ना। आई वॉन्ट टू ऐड C इन इट। तो अभी मैं क्या करूंगा, मैं A + B में C अटैच करूंगा। किस में अटैच करना है? A + B में C। A और B हो गया उनका खत्म, ब्रैकेट ओपन कर दिया। अभी उनके बारे में नहीं सोचना, अभी आपको सिर्फ C ऐड करना है। तो सिंस यू माइट गेट कंफ्यूज, मैं एक A और B को थोड़ा गायब कर देता हूँ। तो आपको क्या करना है, ये A और B को इग्नोर करना है। जो ब्लैक किया है ना उसको मैं देखो ही मत, नहीं है समझो, सिर्फ आपको ये दिख रहा है A + B। अभी इस A + B को आपको अटैच करवाना है C के साथ। सो यू कैन डू इट लाइक दिस। इसको कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे लाइक दिस। हो गया। नाउ इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, this A + B and C are actually creating two adjacent side of the triangle, then their Yes. resultant is remaining side of the triangle। एक और बार triangular law apply हो गया, and once you do that you will get a resultant vector which will go like this। ये हो गया आपका फाइनल रिजल्टेंट, एंड इसको नाम देते हैं R1 बोलते हैं। तो ये हो जाएगा R1 which is equals to A + B। इसको पहले ब्रैकेट में सॉल्व किया, सर देन R1 वी एडेड। रिजल्टेंट वेक्टर उल्टा ड्रॉ किया अभी रेड से। नहीं, सही किया है। सर वो एरो देख उस ये साइड मेरा आएगा ना। इधर ड्रॉ किया मैंने, इधर। वो साइड कैसे बड़ी? ये तेरा फर्स्ट वेक्टर हुआ, ये सेकंड वेक्टर हुआ। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, एंडिंग पॉइंट ऑफ द लास्ट वेक्टर, स्टार्टिंग टू एंड। ओ समझा समझा। हाँ, नहीं इट क्रिएट्स कंफ्यूजन जब मतलब लाइक स्टार्टिंग पे आप देखोगे ना, तो स्टार्टिंग लेवल पे इट हैपेंस। ओके, तो यू गॉट दिस पर्टिकुलर वेक्टर। हाँ, तो आपको रिजल्टेंट हो गया। LHS खत्म। अभी RHS की बात करते हैं। तो इन RHS व्हाट डू दे वांट मी टू फाइंड आउट? दे वांट मी टू फाइंड आउट A + B + C। तो दैट मीन्स मुझे ना A में ऐड करना है, बट A में किसे ऐड करना है? B + C को ऐड करना है। So that means first I have to calculate B + C। कुछ भी हो जाए, I want to calculate it। I must calculate it। So what can I do? मैं B को लूंगा, C को लूंगा और कंबाइन कर दूंगा। सेम ट्रायंगुलर लॉ करना है। तो ये B को लिया आपने,
इधर पेस्ट कर दिया, फिर सी को लिया आपने, इधर पेस्ट कर दिया, फिर यू हैव टू ड्रॉ रिजल्टेंट, है ना, ब्लू वाला। डन। सो दिस इज योर वेक्टर बी प्लस सी। अभी देखो आप प्रोसेस में क्या बोला है कि ए में बी प्लस सी ऐड करना है। दैट मीन्स ट्रीट योर ए वेक्टर एज योर फर्स्ट वेक्टर एंड ट्रीट योर बी प्लस सी एज योर सेकेंड वेक्टर। सर बट अगर मुझे उल्टा करना है तो आप बोल रहे हो ए को फर्स्ट पकड़ना है, मुझे ए को सेकेंड ही लेना है, आप बी प्लस सी में ही ए ऐड करो। कुछ भी कर, तेरे को सेम आंसर आएगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने सिखाया ना कि ट्रायंगुलर लॉ ऑब्वियस कम्यूटेटिव लॉ। तो आप ए में बी प्लस सी ऐड करो या फिर बी प्लस सी में ए ऐड करो, पीछे से कुछ फर्क नहीं पड़ता। ओके बट अभी मैं ना डायग्राम थोड़ा सा क्लीन दिखे, नीट दिखे, इसीलिए ए को फर्स्ट कंसिडर करूंगा और बी प्लस सी को सेकेंड। बट हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे, हम क्या करेंगे, हम बी प्लस सी को फर्स्ट लेंगे बाद में एंड ए को सेकेंड, ऑर्डर चेंज करना है, बाकी कुछ नहीं। थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। कोई बात नहीं साक्षी, द लेक्चर इज गेटिंग रिकॉर्डेड, ओके, तो तू बाद में उसको वीडियो में देख सकती है। अभी देखो क्या होगा आगे। तो व्हाट क्या बोल रही है, हेलो हेलो, लाइक आई हैव शार्प ईयर्स, आई हैव शार्प ईयर्स, बट इतने भी शार्प नहीं कि आप मन में बोलो मुझे सुनाई दे, यू हैव टू स्पीक आउट लाउड। ओके कोई बात नहीं, थैंक यू पूजा। तो अभी क्या करना है आपको, यू बेसिकली बी प्लस सी को ऐड किया आपने, अभी इसमें क्या ऐड करना है आपको, ए को पहले लेना है। तो मैं क्या करता हूँ पता है, जानबूझ के देखो कैसे मैं जुगाड़ कर रहा हूँ। मैं ए को पहले लिया एंड ए को यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और मैंने ऐसे अटैच किया है ना कि अभी ना इसको इग्नोर करते हैं, ये दो वेक्टर्स, लेट्स इग्नोर देम फॉर सम टाइम। ओके अभी अभी देखो, ये हो गया आपका फर्स्ट वेक्टर, ये हो गया आपका सेकेंड वेक्टर। इजंट इट लाइक इन द फॉर्मेट ऑफ ट्रायंगुलर लॉ। तो अभी रिजल्टेंट बन जाएगा। तो आप क्या करोगे, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर से लेके एंडिंग पॉइंट ऑफ द लास्ट वेक्टर अटैच करोगे। सो स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट। अरे व्हाई इज इट नॉट वर्किंग, वेट, या फाइनली आई वाज एबल टू डू इट। तो इसको बोलेंगे R2 वेक्टर विच विल बी A प्लस B प्लस C। नाउ आई वांट यू टू ऑब्जर्व इट केयरफुली गाइस, ये दोनों डायग्राम एकदम बड़े प्यार से देखो, तो आप अपने आप समझ जाओगे कि ये वेक्टर एंड ये वेक्टर एक दूसरे को पैरेलल है। सेकेंड चीज, उनका मैग्नीट्यूड सेम है। एंड इफ यू डोंट बिलीव मी, लेट मी शो यू दिस पर्टिकुलर थिंग। ओके सो आई एम गोना कॉपी दिस पर्टिकुलर वेक्टर, आई एम गोना पेस्ट इट ओवर हियर। वो थोड़ा बहुत ना एरोज के प्रॉपर पोजीशन ना बनने की वजह से ओवरलैप लग रहा है, मतलब ये ऊपर नीचे लग रहा है, बट यू गॉट द पॉइंट, करेक्ट। तो आपका रिजल्टेंट क्या हुआ, सेम हुआ। तो अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो आपका राइट हैंड साइड भी सेम हुआ। दिस इज हाउ यू हैव प्रूव्ड एसोसिएटिव लॉ। बट सर ये आप 1 2 का 2 1 कुछ बोलने वाले थे, वो क्या है, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। ओके सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू टेक वन मोर केस। ये एक्स्ट्रा है, ये आपके सिलेबस में भी नहीं है, मैं एक्स्ट्रा नॉलेज आपको इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज आई थिंक यू विल लाइक इट। ओके तो ये समझो, ये आपको मैंने यहाँ पे दूसरा वाला वेक्टर केस कंसिडर किया, एक तीसरा वाला केस करते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, पहले b प्लस सी कंसिडर करेंगे एंड आफ्टर दैट a ऐड करेंगे। ओके तो b प्लस सी तक का प्रोसेस तो सेम रहने वाला है, यू आर गोइंग टू ऐड b, देन यू आर गोइंग टू ऐड c, एंड वंस इट इज डन यू आर गोइंग टू पुट द नेक्स्ट वेक्टर। तो ये आपको b प्लस सी तक सेम मिला। इसके बाद क्या करना है डियर आपको, इसके बाद आपको इसके एंड में, मतलब b प्लस सी के एंड में a को अटैच करना है। तो मैं अभी a को पिक करूंगा, आई विल चूज इट एंड आई विल प्लेस इट ओवर हियर, यहाँ पे पेस्ट करेंगे। हो गया।
अभी देखो आप, जैसे आपने यहाँ पे इसको पेस्ट किया तो आपका ये वेक्टर हो गया फर्स्ट वेक्टर, ये वेक्टर हो गया सेकंड वेक्टर। रूल क्या बोलता है? स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टिल द एंडिंग पॉइंट ऑफ द लास्ट वेक्टर, ये हो गया आपका रिजल्टेंट। ओके, और ये आपका नया वाला रिजल्टेंट R3 बोलते हैं। अभी मजा देखो, इज इट सेम? मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम। क्लिक हुआ कि नहीं? यस सर। ओके, किसी को डाउट है इसमें एसोसिएटिव लॉ में? नो? चलो फिर अच्छी बात है, विल मूव ऑन टू नेक्स्ट कंसेप्ट है। एकदम ऐसे शांत हो गए, मतलब क्या हो क्या गया? एक मिनट, लेट मी सी सम मैसेजेस। ओके, फर्स्ट लेक्चर अर्पिता। ओके, सो अर्पिता, आई इज दिस इज योर फर्स्ट लेक्चर, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा तुझे टू अंडरस्टैंड इट, बट इसका यूट्यूब पे हम लोग वीडियो अपलोड करने वाले हैं, so you can visit our YouTube channel soon and वहाँ से तू चैप्टर सीख सकती है। okay, still if you are facing any difficulty you can, मतलब like आराम से मुझे पूछ सकती है। is it clear? अर्पिता, yes or no? Yes, sir. ओके, वेरी गुड। अच्छा, तो ये था एसोसिएटिव लॉ वगैरह वगैरह, बट ये वैसे भी क्वेश्चन सिलेबस में आते नहीं है, तो हम लोगों को ज्यादा डेप्थ में इनको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो हो गया कंसेप्ट कंप्लीट। आपके नोट्स में ये सब प्रूवन मिलेगा आपको, नो नीड टू वरी अबाउट इट, आई ऑलरेडी सेंड द नोट्स इन द ग्रुप, बट फॉर न्यू स्टूडेंट्स आई विल सेंड इट अगेन। उसमें क्या है, मेरे पास ऑलरेडी है, मुझे फॉरवर्ड करना है। So let's now see a next law that is actually very interesting. Okay, and this particular law is known as polygonal law of vector addition. Why polygonal? Because basically जब भी more than two vectors होते हैं, okay, so there is this student now, if you remember our story, there is this student that is actually challenging me to add new vectors. Okay, so every time he give me new challenge, sir, what if we do this, what if we do that, what if we do this particular thing? So this time he presented me, or he asked me with another challenge. He said, sir, I will give you 4 vectors. Okay, मैं बोला तू मेरे को 4 दे, 6 दे, 10 दे, doesn't matter, मैं तेरे को सब ऐड करके बताएगा। So this particular law is not applicable just for 2 vector like triangular law. It can be applicable for more than 2 vector, 3 4 infinite number, doesn't matter, आप फॉलो कर सकते हो। एंड इट्स वेरी शॉर्ट एंड स्वीट। क्या करना है देखो आपको, यू फर्स्ट हैव टू सिलेक्ट फर्स्ट वेक्टर। ओके, यू हैव टू सिलेक्ट फर्स्ट वेक्टर, तो मैंने उसको सिलेक्ट किया, देन यू विल कीप इट ओवर हियर। देन पहले वेक्टर के एंड को, ये जो एरो होता है ना, वी कॉल इट एज एंड पॉइंट, करेक्ट? पहले वेक्टर के एंड को सेकंड वेक्टर का स्टार्ट अटैच करना है। यू कैन नॉट चेंज द डायरेक्शन, आप गलती से भी डायरेक्शंस को चेंज नहीं कर सकते। मेरे पास एक निंजा टेक्निक है मेरे एफर्ट्स बचाने की। ओके, तो आपको क्या करना है, आपने पहला वेक्टर तो ले लिया, फिर आपको क्या करना है, जो सेकंड वेक्टर है वो पहले वेक्टर के एंड को अटैच करोगे, कर दिया। फिर क्या करोगे आप, जो आपका सेकेंड वेक्टर का एंड है, कौन सा वाला, ये एरो वाला, वो सेकेंड वेक्टर के एंड को थर्ड वेक्टर का स्टार्टिंग चिपका दे। सो व्हाट यू आर गोना डू, यू आर गोना अटैच इट लाइक दिस। हो गया। फिर आफ्टर दैट व्हाट यू आर गोना डू, थर्ड वेक्टर का जो एंड होगा वो फोर्थ वेक्टर का स्टार्ट होगा, तो ये हो गया आपको नेक्स्ट वेक्टर मिला। Now you can clearly see that there exists a gap between starting point of the first vector and the ending point of the last vector. किसके बीच में एक gap है? Starting point of the first vector and ending point of the last vector. So you need to connect these two together. So कैसे connect करेंगे? Starting point से line खींचेंगे ending point तक, and जैसे आप इसको खींचोगे बाद में arrow बनाओ end point की तरफ।
Now this resultant is actually combination of P1 plus P2 plus P3 plus P4. Isn't it like triangular law only? But थोड़ा बहुत मतलब बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए. P4 can't be upside down. No साक्षी, it can't be. क्योंकि अभी सीन क्या हुआ ना, देख तूने जो P4 का गिवन डायरेक्शन है ना, उसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही बनाया. अगर समझ तुझे क्वेश्चन में ही P4 ऐसा दिया होता, देन तू इसको ऐसे अटैच करती, लाइक दिस. क्लियर? P3 के बाजू में. तो गिवन के ऊपर डिपेंड होता है. बट वंस इट इज गिवन यू कैन नॉट चेंज इट. अपने मर्जी से हम लोग कोई डायरेक्शन नहीं बदल सकते. ओके. नाउ ये वाला लॉजिक आपको समझा होगा. पॉलीगोनल लॉ इज जस्ट लाइक अ ट्रायंगुलर लॉ. खींचते जाओ जितना भी खींचना है. आई एम गोइंग टू गिव यू 5 वेक्टर देता हूँ. एंड दिस 5 वेक्टर्स आर ऑफ सेम लेंथ, ताकि आपको डायग्राम बनाने में इजी हो जाए. ओके, let's say the length of the vectors, take it as 5 centimeter. Okay, I want you to draw the diagram and send it in the group. जैसे हमने लास्ट टाइम किया था ना ट्रायंगुलर लॉ के वर्क लास्ट लेक्चर में, सेम. क्रिएट डायग्राम ऑन योर बुक एंड सेंड मी. so you have 5 vectors, apply polygonal law for them, या फिर find out their resultant. कैसे दिखेगा वो मुझे बताओ, मेरे को पता नहीं, आप बताओ. so first vector, so basically these are the 5 vectors. आपको इनको ऐड करना है. देखो क्या आता है रिजल्टेंट, बनाओ. टेक योर टाइम हो, आराम से अंडरस्टैंड करो. Okay, I got one answer. Okay, first A, let me check B, let me check C, let me check D, let me check E. Okay, very good, it is correct. Excellent answer. Yes, Koya, correct answer. Very good. No, sorry, extremely sorry. I made the same mistake. Jyoti.
Yes, Adi, very good, correct. Acha, you want me to check your video? Wait a second. Huh? अरे why it is not zooming? एरो कहाँ पे बनाया तूने? नीचे की तरफ बनाया ना, टुवर्ड्स द एंड, डाउनवर्ड वाला एंड, थोड़ा ऊपर का डायग्राम, अप अप, राइट करेक्ट, जस्ट मेरे को रिजल्टेंट का डायरेक्शन नहीं दिख रहा है उसमें. यू आर नॉट इन द ग्रुप. नहीं, रिजल्टेंट का डायरेक्शन देख तेरे को बनाना है प्रॉपरली. डाउनवर्ड रिजल्टेंट का डायरेक्शन है. आई थिंक तूने बनाया है बट मुझे दिखा नहीं प्रॉपरली. वेरी गुड गाइस.